میں نے جیسے ہی پہلی بار ارسلان کے اس خاص حصے کو دیکھا تو میرے پورے جسم میں خوف اور کراہیت کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ حصہ اتنا کالا سیاہ اور گہرا تھا جیسے کوئی کالا ناگ اندھیرے میں بیٹھا ہو۔ میں اپنی گوری چٹی اور صاف ستھری گلابی رنگت کے سامنے اس کا وہ پوشیدہ حصہ مجھے ایک بڑا عجیب عیب لگ رہا تھا۔ میں خوف زدہ ہو گئی کہ میں اس کالے ناگ جیسے جسم کے ساتھ اپنی پوری زندگی کیسے گزاروں گی۔ اس وقت میری عقل پہ گوری رنگت کا ایسا خبط سوار تھا کہ مجھے ارسلان کی بے پناہ دولت، اس کی محبت اور اس کا اچھا اخلاق بالکل دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے دماغ میں بس ایک ہی جنون چل رہا تھا کہ مجھے اس کالی رنگت کو ہر حال میں جڑ سے ختم کرنا ہے، چاہے مجھے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے۔ لیکن میں اس وقت بالکل بے خبر تھی کہ اس کالے حصے کو گورا کرنے کی میری یہ ضد ایک دن ارسلان کو ایک ایسا پھسا بے جان اور مفلوج جسم دے دے گی جو نہ مردوں میں رہے گا نہ عورتوں میں، اور میری ہستی کھیلتی ازدواجی زندگی ہمیشہ کے لیے ہسپتال کے ٹھنڈے برآمدوں میں سسکیاں لینے پہ مجبور ہو جائے گی۔ کاش میں اس دن انٹرنیٹ پہ وہ جادوئی کریم سرچ نہ کرتی تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں بچپن سے ہی اپنے پورے خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت اور گوری چٹی لڑکی تھی۔ میری ماں جب بھی مجھے دیکھتی تھی تو صدقے وارے جاتی تھی اور کہتی تھی کہ میری بیٹی تو بالکل دودھ جیسی گوری اور گلابی رنگت والی ہے، اس کے نصیب بہت اونچے ہوں گے اور اس کے لیے کوئی بہت ہی گورا چٹا شہزادہ آئے گا۔ یہی باتیں سن سن کے میرے دماغ میں یہ بات پکی ہو چکی تھی کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز صرف اور صرف گوری اور صاف ستھری رنگت ہی ہوتی ہے۔ مجھے اپنی خوبصورتی پہ بہت زیادہ گھمنڈ تھا۔ میں جب بھی آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو گھنٹوں خود کو دیکھتی رہتی اور دل ہی دل میں اپنی قسمت پہ ناز کرتی کہ اللہ نے مجھے کتنا پرفیکٹ بنایا ہے۔ کالج اور یونیورسٹی میں بھی میری گوری رنگت کی وجہ سے لڑکیاں مجھ سے حسد کرتی تھیں اور لڑکے میرے آگے پیچھے گھومتے تھے، لیکن میں کسی کو لفٹ نہیں کراتی تھی کیونکہ میری صرف ایک ہی شرط تھی کہ میرا ہونے والا شوہر نہ صرف امیر ہو بلکہ اس کی رنگت بھی بالکل صاف، شفاف اور گلابی ہونی چاہیے۔ مجھے سانولے یا کالے رنگ کے لوگوں سے ایک عجیب سی چڑ تھی۔ جب بھی کوئی سانولا لڑکا میرے سامنے آتا تو میں منہ پھیر لیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ گورا رنگ ہی انسان کی اصل اوقات اور اس کی شرافت کی نشانی ہے۔ وقت گزرتا گیا، جب میری پڑھائی مکمل ہوئی تو میرے گھر والوں نے میرے لیے رشتوں کی تلاش شروع کر دی۔ میری خوبصورتی کے چرچے دور دور تک تھے، اس لیے بہت سے رشتے آئے، لیکن میں ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی عیب نکال کے مسترد کر دیتی۔ کسی کا قد چھوٹا ہوتا تو کسی کا رنگ مجھے گورا نہیں لگتا تھا۔ میری ماں مجھے سمجھاتی تھی کہ صدف بیٹا، شکل و صورت عارضی ہوتی ہے، انسان کا اخلاق اور اس کی عزت دیکھی جاتی ہے، لیکن میں ان کی ایک نہ سنتی اور اپنی ضد پہ اڑی رہتی کہ شادی کروں گی تو صرف ایک انتہائی گورے چٹے لڑکے سے ہی کروں گی۔ پھر ایک دن میرے والد کے ایک بہت قریبی اور امیر دوست ہمارے گھر آئے۔ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے اور ان کا بیٹا ارسلان کینیڈا سے اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تھا اور اپنے والد کا سارا بزنس سنبھال رہا تھا۔ ارسلان کی دولت اور اس کی کامیابی کے چرچے پورے خاندان میں تھے۔ جب میرے والد نے مجھے بتایا کہ ارسلان کا رشتہ میرے لیے آیا ہے تو میں پہلے تو بہت خوش ہوئی، لیکن جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ارسلان کا چہرہ تو عام سانولا تھا، لیکن اس کا باقی جسم، رنگت اور خاص طور پہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کافی گہرے اور پکے رنگ کے تھے۔ مجھے اسے پہلی نظر میں دیکھ کے ایسا لگا جیسے کوئی کالا ناگ میرے سامنے آ گیا ہو۔ اس کا وہ گہرا رنگ میرے گورے چٹے اور گلابی خط کے بالکل خلاف تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کے صاف کہہ دیا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ رنگت کے معاملے میں میرے معیار پہ بالکل پورا نہیں اترتا۔ مجھے اپنے لیے ایک صاف ستھرا اور گورا مرد چاہیے، لیکن میرے والد نے مجھ پہ بہت دباؤ ڈالا۔ انہوں نے کہا ارسلان جیسا خاندانی اور امیر لڑکا تمہیں دوبارہ نہیں ملے گا۔ وہ تمہیں ملکہ بنا کے رکھے گا اور مرد کا رنگ نہیں، اس کا کمانا اور اس کی عزت دیکھی جاتی ہے۔ گھر والوں کے شدید اصرار اور ارسلان کی بے پناہ دولت کو دیکھ کے میں نے بھاری دل کے ساتھ ہاں تو کہہ دی، لیکن میرے دل میں وہ گوری رنگت کا خبط ایک جنون کی طرح برقرار رہا۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ میں اپنے قیمتی لہنگے اور بھاری میک اپ میں واقعی ایک حور لگ رہی تھی، لیکن جب وہ میرے پاس بیٹھا تو مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی۔ شادی کی پہلی رات جب ہم اپنے خوبصورت کمرے میں اکیلے تھے تو ارسلان نے بہت محبت سے میرا ہاتھ تھاما۔ اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، وہ مجھ سے بہت پیار سے باتیں کر رہا تھا۔ اسے مجھے سونے کا ایک بہت قیمتی سیٹ تحفے میں دیا اور کہا کہ صدف، میں دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا، لیکن میری نظریں صرف اس کی رنگت پہ جمی ہوئی تھیں۔ جب ہماری ازدواجی زندگی شروع ہوئی تو میرے سامنے یہ حقیقت آئی کہ اس کا وہ خاص حصہ بالکل کالا اور گہرا تھا۔
जैसे कोई काला नाग हो। मुझे अपनी कोरी चिट्टी और साफ सुथरी गुलाबी रंगत के सामने उसका वो हिस्सा देख के शदीद कराहत और नफरत महसूस होने लगी। मेरे दिमाग पे ये खब्त सवार हो गया कि मैं इतनी गोरी और साफ सुथरी हूँ, तो मेरे शौहर का वो हिस्सा इतना काला क्यों है। ये सोच मेरे अंदर एक बीमारी की तरह फैलने लगी। अरसलान जब भी मेरे करीब आने की कोशिश करता तो मेरे जहन में उसके उस काले हिस्से का ख्याल आ जाता और मैं किसी न किसी बहाने से उससे दूर हो जाती या अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती। अरसलान समझता था कि शायद मैं अभी नई जगह पे आई हूँ इसलिए शर्मा रही हूँ या घबरा रही हूँ। वो मेरे साथ बहुत नरमी से पेश आता था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसकी बीवी उसकी मोहब्बत से ज़्यादा उसके जिस्म के ख़ास हिस्से की रंगत से नफ़रत कर रही है। दिन गुजरते गए और अरसलान की मोहब्बत में कोई कमी ना आई। वो मुझे शॉपिंग करवाता, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाता और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता, लेकिन जब भी हम कमरे में अकेले होते तो मेरा वो ख़ब्त मुझ पे हावी हो जाता। मैं अक्सर आईने के सामने खड़ी होकर अपने गुलाबी और गोरे जिस्म को देखती और फिर अरसलान के उस काले हिस्से का मवाजना करती तो मेरा दिल खून के आंसू रोता। मैंने सोच लिया कि मैं इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैं अरसलान की उस जगह की रंगत को बदल के रहूँगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैंने सबसे पहले अपनी अलमारी से गोल्डन पर्ल क्रीम निकाली, जो हमारे यहाँ रंग गोरा करने के लिए बहुत मशहूर है। एक रात जब अरसलान बिस्तर पे आया और हम करीब हुए तो मैंने बहुत प्यार से उसे अपने पास लिटाया और कहा कि अरसलान, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जिस्म भी मेरी तरह बिल्कुल साफ सुथरा और गोरा दिखे। मेरे पास एक बहुत अच्छी क्रीम है, मैं तुम्हारे इस खास हिस्से पे लगाना चाहती हूँ। अरसलान मेरी बात सुन के पहले तो बहुत हैरान हुआ और उसने हंसते हुए कहा कि सदफ, मर्दों के जिस्म के वो हिस्से ऐसे ही होते हैं, इसमें रंगत का क्या मसला है। लेकिन मैंने रोना धोना शुरू कर दिया और ज़िद की कि अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुम्हें मेरी ये बात मानना पड़ेगी। अरसलान मुझे उदास नहीं देख सकता था। उसने हार मान ली और कहा, चलो ठीक है, तुम जो चाहती हो कर लो। मैंने खुशी खुशी वो गोल्डन पर्ल क्रीम उंगली पे लगाई और उसको उस खास जगह पे लगानी शुरू कर दी। वो चुपचाप लेटा रहा, लेकिन अभी बमुश्किल 3 मिनट ही गुजरे कि अचानक उसका चेहरा तकलीफ से सुर्ख हो गया और वो बिस्तर पे तड़पने लगा। उसे बेचैनी से कहा कि मुझे बहुत शदीद और नाकाबिले बर्दाश्त जलन हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तेज़ाब डाल दिया हो या बहुत ज़्यादा मिर्चें लगा दी हों। मैंने उसका हाथ पकड़ के कहा कि थोड़ा बहुत बर्दाश्त करो, ये क्रीम अपना काम कर रही है। शुरू में ऐसा ही होता है, लेकिन जलन इतनी शदीद थी कि उससे 1 सेकंड भी बर्दाश्त ना हुआ। वो फ़ौरन बिस्तर से उठा और बाथरूम की तरफ भागा। उसे वहाँ जाके ठंडे पानी से उस जगह को बार-बार धोया। जब वो बाहर आया तो अभी तक तकलीफ़ से कराह रहा था। उसने मुझे गुस्से और दर्द भरे लहजे में कहा कि सदफ़, आइंदा कभी इस जगह कोई ऐसी चीज़ मत लगाना। वहाँ की जल्द बहुत हसास होती है और मुझे ये केमिकल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे अरसलान की तकलीफ़ पे तरस आने के बजाय इस बात पे गुस्सा आ रहा था कि मेरी पहली कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। मेरे अंदर का खबत अब एक जनून बन चुका था। मैंने चंद दिन इंतज़ार किया था कि अरसलान की वो जलन और सुर्खी ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने मार्केट से 2-3 और अलग-अलग कंपनियों की रंग गोरा करने वाली क्रीमें ख़रीदी और एक रात दोबारा उसे राज़ी करने की कोशिश की। मैंने उससे बहुत मिन्नतें की और कहा कि इस बार ये दूसरी क्रीम है, इससे जलन नहीं होगी। उसे मेरी खुशी की खातिर दोबारा इजाज़त दे दी, लेकिन जैसे ही मैंने वो दूसरी क्रीम उस जगह पे लगाई तो अरसलान फिर से तड़प उठा। इस बार उसे जलन के साथ-साथ शदीद ख़ारिश भी शुरू हो गई और वो फ़ौरन बाथरूम भागा और सब कुछ धो दिया। उसे बाथरूम से निकल के साफ कह दिया कि सदफ़, अब बहुत हो गया। अल्लाह ने मुझे जैसा बनाया है मैं उस पे खुश हूँ। तुम प्लीज़ मुझे ये सब करने पे मजबूर ना करो और मुझे इन तकलीफ़ क्रीमों से माफ़ रखो। कोई भी क्रीम लगाना मेरे लिए ख़तरनाक हो सकता है। उसका ये हतमी जवाब सुन के मैं खामोश तो हो गई, लेकिन मेरे दिमाग में जो तूफ़ान चल रहा था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे हर वक़्त बस वही एक बात याद रहती कि उसका वो हिस्सा गहरा काला है और मुझे वो किसी सूरत कबूल नहीं है। अगर आम ब्यूटी क्रीमें वहाँ काम नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि मुझे कोई बहुत ही ख़ास और अलग चीज़ ढूँढनी पड़ेगी। मैंने दिन-रात इंटरनेट पे रिसर्च करना शुरू कर दी। अरसलान जब ऑफ़िस चला जाता तो मैं कमरे का दरवाज़ा बंद करके मोबाइल फ़ोन लेके बैठ जाती। मैं यूट्यूब, गूगल और मुख्तलिफ़ फ़ॉरेन वेबसाइट्स पे ऐसी चीज़ें सर्च करती जो ख़ास तौर पे मर्दों के हसास हिस्सों की रंगत को गोरा करने के लिए बनाई गई होती। मैं घंटों बैठ के लोगों के रिव्यूज़ पढ़ती, उनके तबसरे देखती कि किस चीज़ का क्या रिज़ल्ट है। मैं इस ख़ब्त में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे घर के काम-काज की भी होश नहीं रहती थी। मेरी सास अक्सर मुझसे कहती थी कि सदफ़, तुम आजकल बहुत खोई-खोई रहती हो, मियाँ-बीवी में सब ठीक तो है ना?
मैं झूठ बोल देती कि जी अम्मी सब ठीक है, बस तबीयत थोड़ी सुस्त रहती है। कई हफ्तों की मुसलसल सर्चिंग के बाद बिलाखिर एक रात जब अरसलान गहरी नींद सो रहा था तो मैं मोबाइल की रोशनी में एक इंटरनेशनल वेबसाइट खंगाल रही थी। अचानक मेरी नज़र एक इश्तिहार पे पड़ी। इस इश्तिहार को देखते ही मेरी आंखें चमक उठीं। वहाँ एक ख़ास क्रीम की तस्वीर बनी थी और उसके नीचे बड़े बड़े हरूफ में लिखा था कि ये एक जादुई और इंतहाई खुफिया फार्मूला है जो ख़ास तौर पर जिस्म के इंतहाई हसास और पोशीदा हिस्सों की रंगत को मुस्तकिल तौर पे गोरा करने के लिए तैयार किया गया है। उस इश्तिहार में ये दावा किया गया था कि क्रीम जिल्द की गहराई में जाकर मेलानिन को ख़त्म करती है और काले से काले नाग जैसे हिस्से को भी चंद ही दिनों में बिल्कुल गोरा चिट्टा और साफ सुथरा गुलाबी बना देती है। और सबसे बड़ी और अहम बात जो वहाँ लिखी थी वो ये थी कि इस क्रीम को लगाने से ना तो कोई जलन होती है, ना खारिश होती है और ना ही जिल्द पे कोई सुर्ख निशान पड़ता है, क्योंकि यह मुकम्मल तौर पर हसास जिल्द के लिए बनाई गई है। मुझे ऐसा लगा जैसे अंधे को आंखें मिल गई हों। मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मैंने सोचा कि यही वो चीज़ है जिसकी मुझे तलाश थी। जब मैंने उस क्रीम की कीमत देखी तो वो बहुत ज़्यादा थी, यानी आम क्रीमों से 10-20 गुना ज़्यादा महंगी थी। लेकिन मेरे लिए पैसे की कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि अरसलान का क्रेडिट कार्ड मेरे पास ही रहता था और वो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता था। मैंने अरसलान को बगैर बताए उस वेबसाइट पे अपना ऑर्डर बुक कर दिया और उसकी ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी। ऑर्डर देने के बाद मेरे दिल की धड़कनें तेज़ रहने लगीं। अब मुझे रोज़ाना बस उस पार्सल का इंतज़ार रहता था। जब भी घर की घंटी बजती मैं भाग के दरवाजे की तरफ जाती कि कहीं मेरा पार्सल तो नहीं आ गया। अरसलान अक्सर मेरी इस बेचैनी को नोट करता और पूछता था कि सदफ़, तुम दरवाजे की तरफ ऐसे क्यों देखती हो? क्या किसी का इंतज़ार है? तो मैं हंस के बात टाल देती कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। अरसलान दिल का बहुत साफ था, वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, इसलिए मेरी हर बात पे यकीन करता। उसे वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसकी खूबसूरत बीवी उसके जिस्म के ख़ास हिस्से की रंगत को बदलने के लिए किस हद तक जा चुकी है और इंटरनेट से एक ऐसी खतरनाक चीज़ मंगवा चुकी है जो हमारी हंसती खेलती ज़िंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद करने वाली थी। चंद दिन बाद जब वो ऑफिस जा चुका था तो घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने जल्दी से जाके दरवाज़ा खोला तो सामने कोरियर वाला खड़ा था। उसके हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत और मजबूत पैकिंग वाला बैनुल अक़वामी पार्सल था, जिस पर बाहर के मुल्क की मोहरें लगी हुई थीं। मैंने जल्दी से दस्तखत किए, पार्सल लिया और अपने कमरे की तरफ भागी। मैंने अंदर से वो दरवाज़ा बंद किया। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थीं कि मुझे अपने दिल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने बहुत एहतियात से उस पैकिंग को खोला तो अंदर से एक बहुत ही शानदार और महंगी दिखने वाली शीशे की डिब्बी निकली, जिस पे सुनहरी हरूफ में उस ख़ास क्रीम का नाम लिखा था। मैंने उसकी सील खोली और उसे अपनी उँगली पे थोड़ा-सा लगा के सूंघा तो उसकी खुशबू बहुत ही दिल फ़रेब और शाही थी। उसका टेक्सचर बिल्कुल मक्खन की तरह नरम और मुलायम था। मैंने अपने हाथ की पुष्ट पे थोड़ी-सी क्रीम लगा के देखी। 10 मिनट तक इंतज़ार किया तो वाक़ई मुझे ना तो कोई जलन महसूस हुई, ना ही कोई ख़ारिश हुई। वो जगह बिल्कुल ठंडी और नरम रही। मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये जो लिखा था वो 100% सच था। ये वाक़ई एक जादुई क्रीम थी। अब बस मुझे रात का इंतज़ार था कि कब अरसलान घर आए और मैं उस पे अपना आखिरी और सबसे बड़ा तजर्बा शुरू करूँ, जिसके बाद वो काला हिस्सा हमेशा के लिए गोरा और गुलाबी हो जाएगा। शाम के साए गहरे हो रहे थे और मेरी बेचैनी अपने अरूज पे पहुँच चुकी थी। मैं बार-बार किचन से निकल के लाउंज में आती और दीवार पे लगी घड़ी की टिक-टिक को देखती। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज वक़्त बहुत आहिस्ता गुज़रा है। अरसलान के आने का वक़्त 8 बजे का था और अभी बमुश्किल 7 बजे थे। मैंने उस ख़ास शीशे की डिब्बी को अपनी अलमारी के सबसे महफूज़ कोने में एक रेशमी कपड़े के अंदर लपेट के रख दिया था, ताकि उसकी नज़र उस पे अचानक न पड़ जाए। मैंने आज उसकी पसंद का शाही कोरमा और गरमा-गरम नान तैयार किए थे, क्योंकि मैं जानती थी कि जब इंसान का पेट भरा हुआ हो और मूड अच्छा हो तो वो आपकी हर बात आसानी से मान लेता है। मैंने खुद को भी आईने में देखा और अपने बालों को दुरुस्त किया। मेरी गोरी चिट्टी रंगत आईने में चमक रही थी और मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि सदफ, बस आज की रात तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला हल होने वाला है। तुम्हारा वो खूबसूरत और गुलाबी जिस्म अब एक ऐसे साथी के साथ होगा जो हर लिहाज से तुम्हारे मयार पे पूरा उतरेगा। ठीक 8 बजे बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई तो मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मैंने जल्दी से जाके दरवाज़ा खोला। अरसलान हमेशा की तरह चेहरे पर एक थकी हुई लेकिन बहुत प्यारी मुस्कुराहट लिए अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बड़ा सा शॉपर था, जिसमें मेरे पसंदीदा आम और मिठाई थी। उसने वो शॉपर मेरे हाथ में देते हुए कहा कि सदफ़, आज ऑफ़िस में बहुत काम था, लेकिन मुझे याद था कि तुम्हें आम पसंद है, इसलिए मैं रुक के तुम्हारे लिए लेता आया।
मैंने मुस्कुरा के उसका शुक्रिया अदा किया और उसका कोट अपने हाथ में ले लिया। अरसलान जब बाथरूम में फ्रेश होने गया तो मैंने जल्दी से खाना मेज़ पर लगा दिया। खाना खाते हुए बहुत खुश दिखाई दे रहा था। वो मुझे अपने ऑफिस के किस्से सुना रहा था कि किस तरह उसने आज एक बहुत बड़ी कैनेडियन कंपनी के साथ डील फाइनल की है जिससे उसके बिजनेस को करोड़ों का फ़ायदा होगा। वो कह रहा था कि सदफ, ये सब तुम्हारे नसीब का है। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मेरे हर काम में बरकत हो रही है। उसकी ये बातें सुन के एक पल के लिए मेरे दिल के किसी कोने में निदामत का एहसास जागा। क्या ये इंसान मुझसे इतनी सच्ची मोहब्बत करता है और मैं इसके जिस्म की रंगत को लेके क्या कुछ सोचती रहती हूँ। लेकिन अगले ही लम्हे मेरे दिमाग पे छाया हुआ वो गोरी रंगत का खबत दोबारा गालिब आ गया और मैंने सोचा कि अगर मैं इसकी रंगत साफ कर दूंगी तो यह हम दोनों के लिए ही अच्छा होगा ना। खाना खाने के बाद अरसलान ने कहा कि सदफ, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मेरे सर में भी हल्का सा दर्द है। मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा, आप कमरे में चले, मैं गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। अरसलान बिस्तर पे लेट गया और मैं चाय का कप लेके कमरे में पहुंची। जब उसे चाय पी ली तो मैंने बर्तन एक तरफ रखे और कमरे का बड़ा लाइट बंद करके हल्का सा नाइट बल्ब ऑन कर दिया, जिसकी मध्यम रोशनी कमरे में एक रोमानवी माहौल बना रही थी। मैं अरसलान के बिल्कुल करीब बैठ गई, उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगी। अरसलान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक सुकून का सांस लिया। मैंने बहुत ही धीमे और लाडले लहजे में बात शुरू की और कहा कि अरसलान, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी बहुत अहमियत है और मैं चाहती हूँ कि हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी दुनिया की सबसे खूबसूरत ज़िंदगी हो। अरसलान ने आंखें खोल के मुझे देखा और कहा कि सदब, हमारी ज़िंदगी तो पहले ही बहुत खूबसूरत है। तुम मेरे पास हो, मुझे और क्या चाहिए। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि हाँ, लेकिन एक छोटी सी ख्वाहिश है जो मेरे दिल को हर वक्त बेचैन रखती है। उसने हैरत से पूछा, ऐसी कौन सी ख्वाहिश है। सदफ, तुम हुक्म करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने अपनी अलमारी की तरफ इशारा किया और कहा कि मैंने इंटरनेट से एक बहुत ही ख़ास और महंगी क्रीम मंगवाई है। ये कोई आम ब्यूटी क्रीम नहीं है, ख़ास तौर पे हसास हिस्सों के लिए बनी है और इससे बिल्कुल जलन या ख़ारिश नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे अपने उस ख़ास हिस्से पे रोज़ाना लगाओ। उसका चेहरा ये सुनते ही एकदम संजीदा हो गया। उसने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाया और कहा कि सदफ, तुम फिर वही बात लेके बैठ गई हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इन चीज़ों के पीछे मत पड़ो। कुदरत ने इंसान को जैसा बनाया है उसे उस पर शुक्र करना चाहिए और ख़ास तौर पर इन पोशीदा हिस्सों की जल्द इतनी नाजुक होती है कि वहाँ कोई भी केमिकल लगाना नुकसानदेह हो सकता है। तुमने पहले भी 2 बार तजर्बा किया और मेरा क्या हाल हुआ था तुम देख चुकी हो। फिर तुम क्यों बाज नहीं आ रही। अरसलान के लहजे में पहली बार मुझे थोड़ा सा गुस्सा महसूस हुआ, लेकिन मैं भी अपनी जिद की पक्की थी। मैंने फौरन अपनी आंखों में आंसू भर लिया और मुंह फेर के बैठ गई। मैंने रोते हुए कहा, मुझे मालूम था कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम सिर्फ जुबान से दावे करते हो। अगर तुम मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकते तो तुम्हारी इस दौलत और मोहब्बत का मैं क्या करूं। मैं इतने दिन से इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी ताकि तुम्हारी वो काला नाग जैसी रंगत साफ हो जाए और हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर लगें। लेकिन तुम्हें मेरी खुशी की कोई परवाह ही नहीं है। वो मेरी आंखों में आंसू देख के बिल्कुल पिघल जाता था। अपनी जगह से उठा और मुझे कंधों से पकड़ के अपनी तरफ मोड़ा। उसे बहुत प्यार से मेरे आंसू साफ किया और कहा, सदफ, तुम पागल हो क्या। बात बात पे रो पड़ती हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अगर तुम कहती हो तो मैं ये क्रीम लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर इस बार भी जलन हुई तो मैं फ़ौरन धो लूँगा। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मुस्कुरा के कहा कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस बार बिल्कुल जलन नहीं होगी, क्योंकि मैंने खुद इसे अपने हाथ पे चेक किया है। बहुत ठंडी और मुलायम है। मैंने जल्दी से अलमारी से वो शीशे की डिब्बी निकाली और उसे खोला। कमरे में उसकी दिल फरेब खुशबू फैल गई। अरसलान बिस्तर पे सीधा लेट गया और मैंने अपने हाथों में वो मक्खन जैसी नरम क्रीम ली। मैं बहुत डरी हुई थी कि कहीं पिछली बार की तरह अरसलान तड़प ना उठे, लेकिन जैसे ही मैंने उस ख़ास क्रीम को उसके उस ख़ास हिस्से पे लगाना शुरू किया तो उसके चेहरे पे तकलीफ़ के कोई असरात ज़ाहिर नहीं हुए। मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पे क्रीम का मसाज किया और अरसलान से पूछा कि अरसलान, क्या तुम्हें जलन हो रही है। उसे एक गहरा सांस लिया और अपनी आंखें बंद करके कहा कि नहीं सदफ, इस बार वाकई कोई जलन नहीं, बल्कि ये तो बहुत ठंडी और आरामदेह महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुदीने का लेप लगा दिया हो। ये सुन के मेरे दिल को जो सुकून मिला वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने वाला है। मैंने अरसलान से कहा कि तुम्हें अब आधे घंटे तक ऐसे ही लेटे रहना है ताकि ये क्रीम जल्द के अंदर अच्छी तरह जज्ब हो जाए। अरसलान चुपचाप लेटा रहा। मैं उसे देख के दिल ही दिल में अपनी अकल और उस जादुई क्रीम की तारीफ़ें कर रही थी।
उस रात के बाद से ये हमारा रोज़ का मामूल बन गया। अरसलान जब भी रात को सोने के लिए आता, मैं अपने हाथों से वो क्रीम उसके उस ख़ास हिस्से पे लगा देती। अरसलान भी अब आदी हो चुका था, क्योंकि उसे कोई तकलीफ़ या ख़ारिश महसूस नहीं होती थी। इसलिए वो बग़ैर किसी नखरे के चुपचाप लेट जाता था। देखते ही देखते 1 हफ़्ता गुज़र गया, और 1 हफ़्ते के अंदर जो रिज़ल्ट सामने आया, वो वाक़ई किसी मुआज़े से कम नहीं था। अरसलान का वो हिस्सा जो पहले बिल्कुल गहरा और काला स्याह था, अब उसकी रंगत तेज़ी से बदल रही थी। वहाँ की काली चमड़ी अब आहिस्ता-आहिस्ता साफ़ हो रही थी, और उसकी जगह एक हल्की गुलाबी और गोरी वाज़ेह होने लगी थी। जब मैंने पहली बार ये तब्दीली देखी, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मैंने अरसलान को भी दिखाया और कहा, देखो अरसलान, मैं कहती थी ना कि ये क्रीम जादू है। तुम्हारा वो काला रंग अब बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, और तुम भी मेरी तरह गोरे चिट्टे हो रहे हो। अरसलान भी आईने में वो तब्दीली देख के हैरान रह गया। उसे कहा, सदफ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई क्रीम इस जगह की रंगत को इस तरह बदल सकती है। तुम तो वाकई कमाल की चीज़ ले आई हो। अब मेरे अंदर का वो घमंड और खबत और ज़्यादा बढ़ गया। मुझे लग रहा था कि मैंने कुदरत के कानून को बदल दिया है। मैं हर रात और ज़्यादा शौक से वो क्रीम लगाने लगी। 2 हफ्ते गुजरते गुजरते अरसलान का वो हिस्सा अब बिल्कुल गोरा चिट्टा और साफ सुथरा हो चुका था। उसकी चमड़ी इतनी नरम और मुलायम हो गई, जैसे किसी छोटे बच्चे की जिल्द होती है। मैं उसके करीब जाते हुए किसी किस्म की कराहियत महसूस नहीं करती थी, बल्कि मुझे एक अजीब सी खुशी और तस्कीन मिलती थी कि मेरा शौहर अब रंगत के मामले में बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि यह आर्ज़ी खुशी दरअसल एक बहुत बड़े तूफ़ान से पहले की खामोशी थी, और जो क्रीम इस जगह को गोरा कर रही थी, वो अंदर ही अंदर चमड़ी के खुलियात और एसाब को तबाह कर रही थी। तीसरे हफ्ते के आगाज़ में मुझे अरसलान के मिजाज में एक अजीब सी तब्दीली महसूस हुई। सुबह हुई तो अरसलान, जो हमेशा मेरे करीब आने के लिए बेचैन रहता था और मुझसे बहुत प्यार करता था, वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर होने लगा। जब वो रात को बिस्तर पे आता, तो उसका रुख दूसरी तरफ होता, और वो कहता, सदफ, मैं आज बहुत थक गया हूँ, मुझे जल्दी सोना है। शुरू में मैंने सोचा शायद बिज़नेस की मसरूफ़ियत ज़्यादा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन ये सिलसिला रोज़ का बन गया। उसका रवैया मेरे साथ बहुत चिड़चिड़ा हो गया। वो छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा करने लगता और अकेला बैठना पसंद करता। एक रात जब मैंने उसके पास जाके उसका हाथ थामा, तो उसका हाथ बिल्कुल ठंडा था। मैंने कहा, अरसलान, क्या बात है? तुम आजकल मुझसे इतने दूर-दूर क्यों रहते हो? क्या अब तुम्हें अपनी गोरी चिट्टी बीवी अच्छी नहीं लगती? उसने एक लंबी आह भरी और कहा, सदफ, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पिछले कुछ दिनों से अपने जिस्म में एक अजीब-सी कमज़ोरी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर की सारी ताकत ख़त्म हो चुकी है। मैं जब सुबह उठता हूँ, तो मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं टिकते, और मुझे हर वक़्त चक्कर आते रहते हैं। मैंने उसकी बात को हँस के टाल दिया और कहा कि तुम मर्द भी ना बस ज़रा-सी थकन हो तो घबरा जाते हो। मैं कल ही तुम्हारे लिए कोई अच्छे विटामिन्स मँगवा दूँगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन कहानी यहाँ रुकने वाली नहीं थी। चौथे हफ्ते के वसत में वो खौफ़नाक सच्चाई मेरे सामने आई, जिसने मेरी रूह तक को काँपा के रख दिया। उस रात मैंने हमेशा की तरह अरसलान को वो क्रीम लगाने के लिए अलमारी से डिब्बी निकाली। जब मैंने उसको सीधा लेटने के लिए कहा, तो उसने बहुत ही बेबसी से मेरी तरफ देखा। उसकी आँखों में एक अजीब-सा खौफ़ और शर्मिंदगी थी। मैंने जैसे ही उसका वो ख़ास हिस्सा देखा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, और मेरे हाथ से क्रीम की डिब्बी छूट के कालीन पे गिर गई। उसका वो हिस्सा जो कुछ दिन पहले तक गोरा, चिट्टा और साफ-सुथरा दिखाई दे रहा था, अब वो बिल्कुल बदल चुका था। वहाँ की जिल्द ना सिर्फ गैर कुदरती तौर पे सफ़ेद थी, बल्कि वो हिस्सा बिल्कुल फुसफुसा, बेजान और लटका हुआ महसूस हो रहा था। उसके अंदर मर्दानगी और ताकत का नामो-निशान तक ख़त्म हो चुका था। वो बिल्कुल एक मुरझाए हुए पौधे की तरह बेहिस्सो हरकत था। चमड़ी पे जगह-जगह नीली और लाल बारीक रगें वाज़ेह हो चुकी थीं, जैसे जिल्द अंदर से बिल्कुल फट चुकी हो। मैंने घबरा के उस जगह को हाथ लगाया, तो वो हिस्सा बिल्कुल रुई की तरह नरम और फुसफुसा था। उसके अंदर कोई सख्ती या जान महसूस नहीं हो रही थी। अरसलान ने शर्मिंदगी और दुख से अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया, और वो फूट-फूट के रोने लगा। उसे रोते हुए कहा कि सदफ, मैं तुम्हें यही समझा रहा था कि कुदरत के फैसलों में दखल मत दो। पिछले 1 हफ्ते से मेरा ये हाल है कि मुझे इस जगह बिल्कुल बेहिसी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे जिस्म का ये हिस्सा फ़ौलज का शिकार हो चुका है। मेरे अंदर की मर्दानगी ताकत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और मैं एक नामर्द की तरह ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। मैं अपने बिज़नेस पे तवज्जो नहीं दे पा रहा, और ना ही मैं तुम्हारे सामने एक मर्द की हैसियत से खड़ा होने के काबिल रहा हूँ।
तुम्हारी इस गोरी रंगत के खबत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरसलान की बातें सुन के मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मेरे सर पे जैसे किसी ने उबलता हुआ पानी डाल दिया हो। मुझे अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। मैं लरजते हुए हाथों से अरसलान के पास बैठी और उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन मेरे अपने पास अल्फाज नहीं थे। मैंने उस क्रीम के इश्तिहार को दोबारा अपने दिमाग में दोहराया, जहाँ लिखा था कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा था कि वो इंटरनेट की दुनिया का एक बहुत बड़ा धोखा था। उस क्रीम के अंदर इतने ख़तरनाक स्टीरॉयड्स और केमिकल्स थे, जिन्होंने अरसलान की हसास जिल्द को तो गोरा कर दिया, लेकिन उसके अंदर के एसाब, खून की रगों और मर्दाना हार्मोन्स को बिल्कुल जला के राख कर दिया था। अरसलान बिस्तर पे पड़ा सिसकियाँ ले रहा था और मैं कमरे के कोने में खड़ी खुद को कोस रही थी कि मैंने ये क्या कर दिया। अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश और गोरी रंगत की खबत की खातिर मैंने अपने हंसते खेलते और कमाऊ शौहर को इस हाल में पहुंचा दिया। रात किसी तरह रोते धोते गुजरी। अगली सुबह अरसलान की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। उसे उस ख़ास हिस्से में शदीद दर्द शुरू हो गया और वहाँ की जिल्द का रंग अब सफ़ेद से बदल के हल्का नीला होने लगा। मैं शदीद खौफज़दा हो गई। मैंने जल्दी से अरसलान के कपड़े तब्दील कराया और उसे गाड़ी में बिठा के शहर के सबसे बड़े और महंगे हस्पताल की तरफ भागी। अस्पताल के बरामदे में अरसलान को व्हील चेयर पे ले जाया जा रहा था और मैं उसके पीछे पीछे रोती हुई जा रही थी। डॉक्टर ने जब अरसलान का मुआयना किया तो उसके चेहरे पे शदीद तशवीश के आसार थे। उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और वो महंगी शीशे की डिब्बी भी मांगी जो मैं अपने साथ लाई थी। डॉक्टर ने उस क्रीम को देखा, फिर गुस्से से मेरी तरफ देख के कहा कि आप लोगों की अकल कहाँ चली जाती है। इंटरनेट पे मिलने वाली इन लोकल और गैर तस्दीक शुदा क्रीमों के पीछे आप लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इस क्रीम में मरकरी, स्टीरॉयड्स और ऐसे ख़तरनाक केमिकल्स पाए जाते हैं जो जिल्द के ज़रिए जिस्म के अंदर जज़्ब होकर एसाब को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देते हैं। आपके शौहर के इस हिस्से की खून की रगें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं और वहाँ खून की सप्लाई तकरीबन बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से ये हिस्सा बिल्कुल बेजान और फुसफुसा हो गया है। डॉक्टर की ये बातें सुन के मेरे दिल पर जैसे छुरियाँ चल गईं। मैंने रोते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, क्या ये दोबारा कभी ठीक हो पाएंगे? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इनका एक इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा ताकि खून की गर्दिश को बहाल किया जा सके। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं कि इनके 100% ठीक होने के चांसेस बहुत कम हैं। ये उम्र भर के लिए भी इस कमज़ोरी का शिकार रह सकते हैं। डॉक्टर की बात सुन के मेरे सामने अंधेरा छा गया। मैं अस्पताल के उस ठंडे फर्श पे बैठ गई और अपने चेहरे पे थप्पड़ मारने लगी। काश मैंने अपने शौहर के उस काले रंग को कबूल कर लिया होता। काश मैंने उसकी सच्ची मोहब्बत की कदर की होती जो वो मुझसे करता था। ज़ाहिरी रंगत तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन इंसान की सेहत और इसकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा कीमती होती है। अरसलान को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था और मैं बाहर अकेली बैठी सिसकियाँ ले रही थी। अब मुझे अपनी वो गोरी चिट्टी रंगत एक लानत की तरह महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि इस गोरी रंगत ने मुझे दुनिया की सबसे बदसूरत और गुनहगार औरत बना दिया है, जिसने अपने हाथों से अपने सुहाग को उजाड़ दिया। अब मुझे बस अल्लाह से एक ही दुआ मांगनी थी कि या अल्लाह मेरे अरसलान को ठीक कर दे। मुझे उसका वो काला रंग ही कबूल है। मुझे उसका वो काला रंग ही वापस लौटा दे। मैं कभी दोबारा रंगत का नाम नहीं लूँगी। लेकिन क्या कुदरत मुझे माफ़ करेगी? और क्या मेरा अरसलान दोबारा कभी एक मुकम्मल मर्द बन पाएगा? ये वो सवाल था जिसका जवाब अब सिर्फ वक्त ही दे सकता था। डॉक्टर की टीम अरसलान को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जा चुकी थी और बाहर लगी सुर्ख लाइट रोशन हो चुकी थी। वो सुर्ख बत्ती मुझे अपनी बर्बादी का निशान लग रही थी। अस्पताल के उस चौड़े और ठंडे बरामदे में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैं वहां लगी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठने की हिम्मत भी खो चुकी थी। इसलिए मैं वहीं फर्श पे बैठ गई और अपने घुटनों में सर दे के फूट फूट के रोने लगी। मेरे दिमाग में अरसलान का वो रोता हुआ चेहरा घूम रहा था जो उसने बिस्तर पर शर्मिंदगी से छुपाया था। वो इंसान जो हमेशा शेर की तरह दबाव और बिजनेस की मुश्किलात को हंस के झील जाता था, वो मेरी एक जाहिलाना जिद और गोरी रंगत के खबत की वजह से अस्पताल के बिस्तर पे बेजान पड़ा था। मैं बार बार अपने गोरे चिट्टे हाथों को देखती और मुझे उन हाथों से घिन आने लगती। मुझे लगता कि इन हाथों ने मेरे शौहर की मर्दानगी और इसकी ज़िंदगी का कत्ल किया है। वक्त जैसे रुक गया था। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा जब भी खुलता, मेरी धड़कन रुक जाती। लेकिन कोई वार्ड बॉय या नर्स बाहर आती और किसी दूसरी तरफ चली जाती। किसी ने मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। 3 घंटे का वक्त 3 सदियों की तरह गुजरा। बिलाखिर 3.5 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर के ऊपर लगी सुर्ख लाइट बंद हुई और दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पे थकन और संजीदगी के गहरे बादल थे। मैं भागती हुई उसके पास गई और उसके सामने हाथ जोड़ दिए।
मैंने रोते हुए कहा कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे बताएं, मेरा अरसलान ठीक तो है ना? वो पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाएगा ना? डॉक्टर ने अपने दस्ताने उतारे, एक लंबी आह भर के कहा कि सदफ बेगम, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जो रगें स्टीरॉयड्स और केमिकल्स की वजह से ब्लॉक हो चुकी थीं, हमने उनका ऑपरेशन करके खून की गर्दिश को बहाल करने की कोशिश की है, लेकिन जल्द के अंदरूनी एसाब यानी नर्व्स इस हद तक गल चुके थे कि उन्हें दोबारा मुकम्मल तौर पर जिंदा करना नामुमकिन है। हमने इनकी जान तो बचा ली और जो इन्फेक्शन फैल रहा था उसे भी रोक दिया, लेकिन आपको एक कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा। आपके शौहर अब कभी भी पहले जैसे मर्द नहीं बन सकेंगे। वो हिस्सा अब हमेशा के लिए जुज़वी तौर पर मफलूज और बेजान रहेगा। यानी वो अब बाप बनने की सलाहियत और अज़दवाजी ज़िंदगी के काबिल नहीं रहे। ये सुनते ही मेरे सर पे जैसे आसमान टूट पड़ा। मेरे कानों में साईं साईं होने लगी और मेरे पाँव ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं अस्पताल के चमकते हुए फर्श पे गिर गई। डॉक्टर की बातें मेरे दिमाग में हथौड़ों की तरह बज रही थी कि अरसलान अब कभी पहले जैसा मर्द नहीं बन सकेगा, वो बाप नहीं बन सकेगा। मैंने अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए एक हंसते खेलते इंसान को जिंदा लाश बना दिया था। कुछ देर बाद अरसलान को आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया। जब मैं वार्ड के अंदर दाखिल हुई तो अरसलान बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ था। उसके चेहरे की वो गोरी रंगत जो उस जादुई क्रीम ने दी थी अब बिल्कुल जर्द पड़ चुकी थी, जैसे किसी मरीज की होती है। उसकी आंखें छत की तरफ जमी हुई थीं और उन आंखों में कोई चमक नहीं थी, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था। मैं रोती हुई उसके बिस्तर के पास गई और उसका ठंडा हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैंने उसके हाथ पे अपना चेहरा रखा और कहा, अरसलान मुझे माफ़ कर दो। मैं दुनिया की सबसे बुरी औरत हूँ। मैंने अपने हाथों से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। काश मैं तुम्हारे इस काले रंग की कदर करती। काश मैं इस खूबसूरती के खबत में अंधी ना होती। अरसलान ने बहुत आहिस्ता से अपना चेहरा मेरी तरफ मोड़ा। उसकी आंखों से एक आंसू टिपका और उसके गाल में बहता हुआ तकिए में जज्ब हो गया। उसे बहुत ही कमज़ोर और धीमी आवाज़ में कहा कि सदफ, अब माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा? तुम जो चाहती थी वो तुम्हें मिल गया। तुम कहती थी ना कि तुम्हें काला रंग पसंद नहीं। देखो अब मेरा वो हिस्सा काला नहीं रहा, लेकिन अब वो जिंदा भी नहीं रहा। मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी जान खतरे में डालकर वो क्रीम लगाने की इजाज़त दी, क्योंकि मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी ये मोहब्बत मुझे एक जिंदा लाश बना देगी। अब मैं एक अधूरा मर्द हूँ। मैं सोसाइटी में कैसे सर उठा के जीऊँगा और तुम्हें एक शौहर का सुख कैसे दूंगा? तुम तो अपनी गोरी चिट्टी और खूबसूरत हो, तो मेरे जैसे माजूर इंसान के साथ अब कैसे ज़िंदगी गुजारोगी? उसकी ये बातें मेरे दिल को छलनी कर रही थी। उसके हर लफ्ज़ में ऐसा दर्द था जिसका मेरे पास कोई इलाज नहीं था। मैंने उसका हाथ अपने दिल पे रखा और कहा, अरसलान खुदा की कसम मुझे अब गोरा रंग नहीं चाहिए। मुझे अब किसी ब्यूटी क्रीम से कोई मतलब नहीं। तुम जैसे हो मेरे शौहर हो। मैं उम्र भर तुम्हारी खिदमत करूँगी। मैं तुम्हारी गुलाम बन के रहूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करना। अरसलान ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले चंद दिन अस्पताल में इसी तरह गुजरे। अरसलान के घर वाले भी अस्पताल पहुंच चुके थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि अरसलान के साथ क्या हुआ है तो उनके पांव तले से भी ज़मीन निकल गई। मेरी सास ने मुझे बहुत बद्दुआएं दी और कहा, तुम हमारे हंसते खेलते बेटे को खा गई। तुम चुड़ैल हो जो हमारे घर की खुशियां निकल गई। मेरे वालिद भी अस्पताल आए। उन्होंने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि सदफ, मैंने तुम्हें पहले ही दिन समझाया था कि मर्द का रंग नहीं, उसका अखलाक, उसकी इज्जत देखी जाती है, लेकिन तुमने अपने घुमंड में सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। आज मैं तुम्हारी वजह से अरसलान के बाप के सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रहा। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद हम अपने घर वापस आ गए, लेकिन अब ये वो घर नहीं था जहाँ कभी खुशियाँ बसती थीं। अब यह एक कब्रिस्तान की तरह खामोश था। अरसलान अब ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में अकेला बैठा रहता। उसने ऑफिस जाना भी बहुत कम कर दिया। उसका वो रोब और वो कॉन्फिडेंस सब बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। वो जब भी मुझे देखता उसकी आंखों में एक शर्मिंदगी और बेबसी वाज़ेह नजर आती, जो मुझे अंदर ही अंदर मार देती थी। हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। हम मियाँ बीवी तो थे, लेकिन एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रह रहे थे। मैं रोज़ रात को बिस्तर पे लेट के रोती और खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती। मैंने सोचा कि इंटरनेट पे मौजूद वो इश्तिहारात जो रंग गोरा करने के बड़े बड़े दावे करते हैं, वो दरअसल इंसानों की मजबूरी और उनके खपत का फ़ायदा उठाकर करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन बदले में लोगों की हंसती खेलती जिंदगियां उजाड़ देते हैं। मैंने उस क्रीम की डिब्बी को उठा के किचन के डस्टबिन में फेंक दिया, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका था। अब पछतावे के सिवा मेरे पास कुछ नहीं बचा था। वक्त गुजरता गया और मैंने अरसलान की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं उसके लिए वक्त पे खाना बनाती, उसकी दवाइयाँ संभालती, उसका हर तरह से ख्याल रखती।
آہستہ آہستہ اس کے دل میں میری اس ندامت اور سچی خدمت کو دیکھ کے تھوڑی نرمی آئی۔ ایک شام جب ہم لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو اسے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، صدف، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ اس حادثے نے کم از کم تمہارے دماغ سے وہ گوری رنگ کا خبط ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ اب تم ظاہری خوبصورتی کے بجائے انسان کے دل کو دیکھنا سیکھ گئی ہو۔ میں نے ارسلان کے ہاتھ پہ اپنے آنسو بہایا اور کہا کہ ہاں ارسلان، میں نے بہت بڑی قیمت چکا کے یہ سبق سیکھا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز پرفیکٹ ہے۔ انسان کا رنگ کالا ہو یا گورا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز انسان کا اخلاق، اس کی محبت اور اس کی صحت ہوتی ہے۔ اگر آج میرے پاس وہ کالا ناگ ویسے ہی تندرست ہوتا تو میں دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہوتی، لیکن میں نے اپنی نادانی سے سب برباد کر دیا۔ اب میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ میں ارسلان کے اس ادھورے پن کو اپنی بے پناہ محبت سے بھر دوں۔ میں نے ہر طرح سے اپنے شوہر کا خیال رکھا۔ 2 سال اسی طرح خاموشی سے گزر گئے اور 2 سال بعد آہستہ آہستہ میرے شوہر کی حالت ایک معجزے کی طرح ٹھیک ہونے لگی۔ ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے شوہر کی مردانہ طاقت واپس آ رہی ہے۔ یہ سن کے ہم دونوں بالکل حیران رہ گئے، اور پھر چند مہینوں کے اندر ہی میرے شوہر نہ صرف پہلے جیسے ہو گئے بلکہ میں امید سے بھی ہو چکی تھی، اور میں نے اور میرے شوہر نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا تھا جس نے ہمیں آزمائشوں سے نکال دیا تھا۔ لیکن میری یہی گزارش ہے کہ خدا را اپنے پارٹنر کی ظاہری رنگت کے پیچھے مت پڑیں۔ انٹرنیٹ کی جادوئی کریموں اور اسٹیرائڈز کے چکر میں اپنی ازدواجی خوشیاں اور اپنے لائف پارٹنر کی صحت برباد مت کریں۔ اللہ نے جس کو جیسا بنایا ہے اس پہ شکر ادا کریں، کیونکہ ظاہری گورا پن تو ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن جو صحت اور مردانگی ایک بار چلی جائے وہ دنیا کی مہنگی ترین کریم سے بھی واپس نہیں آتی۔ ہمارے معاملے میں تو خدا کی طرف سے معجزہ ہوا ہے، لیکن ہمیشہ یہ معجزہ ہو یہ ضروری نہیں۔